In 2025, we are having some targets set for HIV. We have 95% diagnosed, which are currently at 87%. We have a target of 95% on treatment, which is currently on 89, and we have 95% on viral suppression, which is currently on 94. We can see there is a lag, there is a gap of target and what we have currently achieved. 8% gap in diagnosis, 6% in treatment, and 1% in suppression. This is the gap which we are aiming to cover in the next few coming years. So now we are going to look upon the challenges which has created these gaps. The first challenge we have is stigma and discrimination. Alarmingly high level of stigma levels globally present, even in high-income countries. There are some countries and there are some countries and institutions which criminalize HIV, which creates a problem of stigma and discrimination for people that do have HIV. Next, we come upon impacts and solutions. There is a level of delayed diagnosis, reduced medical adherence, and even depression or anxiety-like symptoms which comes along with HIV. HIV is a disease of lifelong matter. It is not the disease itself which is debilitating, but the social impact of the disease which makes the person challenged. The community-endorsed, culturally appropriate interventions are needed to cover this. There are peer-led education and local storytelling initiatives that should be taken care of. Because there are not only sexual methods, but also pinprick injuries, which I think everybody here as a healthcare worker knows that even a pinprick from an HIV patient can make you an HIV patient. It is not your mistake. It is a disease. It can be contracted in any way. It should not be criminalized or looked upon as anything different. Next, we'll move on to the next problem that we have, that is testing and treatment. The testing and treatment access in India for HIV is extensive, but still I think there are ways to improve it. There are HIV testing facilities available in most of the places, but there are villages, there are CHCs, PHCs where it is still not available. India, as being a developing country, there are gaps in treatment availability throughout. And the inefficient HIV testing and limited availability of ART regimen is also a cause of its gap. The supply chain interruption and antiretroviral drugs availability is also a challenge. Unequal progress between regions and vulnerable population. The communities where HIV is present, there is a large gap between people who are educated for HIV and people who are having HIV. People who have HIV sometimes don't even know what implications of the disease is. They can get it cured. The information is not present. That also creates a gap and challenge. And now comes where we play a significant role. Healthcare system barriers, transportation costs, affordability challenges, healthcare workers' negative attitude and stigma. Suppose if a patient of HIV comes to the clinic, he is looked upon by each of us with a different eye. We become not only cautious, but at times stigmatic towards them, which creates a large gap on their compliance to come to the clinics. If we make the journey easier for them, if we make our clinical settings a little more inclusive, I think the compliance will be much higher. I think people will not look upon and look down on these people, but would more or less include them in communities and services. The confidentiality concerns and privacy concerns are also a big part of it. I think people do not come to the clinics because there will be a breach of privacy. People they know someone might leak their information or their test reports. That's why we also have a very strict confidentiality with HIV testing. Except all our tests for HIV, we have a specific group of guidelines that we follow, which to ensure confidentiality of the patient. Now we come with the next challenge: financing and costs. HIV treatment is a costly one. Everybody knows that. Declining investment in HIV research and development is also a cause of its rising cost. Inefficient funding and prevention of health programs, and then for the middle income countries and from the external to domestic funding are also less. Then comes drug resistance and prevention. Antiretroviral drug resistance is emerging
in developing countries especially. There are gaps in HIV prevention and efforts remain substantial. Inadequate sex education and awareness in developing countries is present. Low uptake and prevention of retroviral therapy and condoms, which can work as a preventive method, are present. Then comes vulnerable programs. There can be programs that can be encouraged. And improving the health of communities and population. So what public health is? Basically, it is a science and a practice. Why is it considered as a science? So what science means in relation to the public health is that it involves the scientific principles and disciples जो कि हम फॉलो करते हैं इसको एक मोटिव प्रोवाइड करने के लिए, एंड प्रैक्टिस ये इसलिए है क्योंकि रिलेटेड है ये पब्लिक से, और पब्लिक है हमारी कम्युनिटी, हमारी पॉपुलेशन, और जिसकी साइंस को, जिसकी एजुकेशन को और नॉलेज को हम पीपल में, कम्युनिटी में प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, तो इजीलिए ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिस भी है, जिसका मोटिव क्या है, इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ कम्युनिटीज़ एंड पॉपुलेशंस। तो मेन मोटिव हमारी पब्लिक हेल्थ का है, जिसको हम स्टडी करते हैं एज अ साइंस एंड एज अ प्रैक्टिस, टू प्रोवाइड द हेल्थ टू द इंडिविजुअल्स जो कि हमारी कम्युनिटी में, हमारी पॉपुलेशन में रिसाइड कर रहे हैं। Second is the public health plays a crucial role in controlling, preventing and managing HIV/AIDS at the community and national levels. So when we relate the topic of public health with the HIV and AIDS, so इसके three main motives आते हैं. First one is controlling, second is preventing and third is managing. To control the spread of HIV/AIDS, to prevent the transmission of HIV and to manage the persons who are getting affected with the HIV. इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, इट एम्स टू प्रोटेक्ट बोथ इंडिविजुअल्स एंड द कम्युनिटी थ्रू अवेयरनेस, सर्विसेज एंड सपोर्टिव पॉलिसी। तो अभी तक तो हमने देखा कि पब्लिक हेल्थ है क्या, इसके मेन मोटिव्स क्या हैं, बट व्हाट इट डज एंड हाउ इट डज। तो इसका मेन मोटिव ये आता है कि ये अवेयरनेस के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज की हेल्प से और सपोर्टिव पॉलिसीज़ की हेल्प से जो भी डिसीज कंडीशन है, जैसे रिलेटेड टू HIV/AIDS हो गया, इनको प्रिवेंट करती है और मैनेज करती है हमारी कम्युनिटी में। सेकेंड वन है हमारे रीसेंट एस्टिमेशंस एंड स्टेटिस्टिक्स, जो कि हमारी पब्लिक में, हमारी कम्युनिटी में HIV का स्प्रेड कितना है, इससे रिलेटेड है। तो अगर हम देखें तो अगर डेथ्स की बात करते हैं तो एस्टिमेटेड 6,30,000 पीपल डाइड फ्रॉम HIV रिलेटेड कॉजेज इन रीसेंट ईयर 2024, और जो कि सिग्निफिकेंट रिडक्शन है प्रीवियस ईयर से। अगर हम प्रीवियस ईयर्स का डेटा देखते हैं तो एक 50% कह सकते हैं रिड्यूस डेथ जो है HIV के कारण हुई है। इसके बाद जो न्यू इन्फेक्शंस का रेट है वो 1.3 मिलियन था हमारा 2024 में। द नेक्स्ट वन इज ग्लोबल इम्पैक्ट जो हमारा HIV और AIDS का हुआ है, दैट इज 39.9 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड हु हैव बीन अफेक्टेड फ्रॉम द HIV और AIDS। नेक्स्ट हमारा आता है मेजर कंपोनेंट्स। तो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक हेल्थ रिलेटेड टू HIV एंड AIDS। द फर्स्ट वन इज प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड। तो पब्लिक हेल्थ है, अभी हमने देखा था कि पब्लिक हेल्थ में इसका मेजर एम होता है मैनेज करना, कंट्रोल करना। तो फर्स्ट कंपोनेंट जो इसका है दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड, जो कि HIV/AIDS है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे और कैसे हम इसके स्प्रेड को प्रिवेंट करेंगे। इसमें आता है पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स एजुकेट पीपल अबाउट सेफ सेक्स, कॉन्डम यूज एंड वेज टू प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन एंड रिड्यूसिंग न्यू इन्फेक्शंस। इसमें क्या होता है कि हम सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, कॉन्डम्स के यूज से रिलेटेड और जितने भी अदर वेज है HIV ट्रांसमिशन से, इससे रिलेटेड लोगों को और पीपल को हम अवेयर करते हैं सो दैट HIV ट्रांसमिशन को और इसके स्प्रेड को हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अर्ली डिटेक्शन। Regular screening and testing help identify HIV early, allowing timely treatment and preventing complications. तो क्या होता है कि कुछ HIV के केसेस ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर टाइम पे या फिर अर्ली डायग्नोस नहीं करते हैं ड्यू टू स्टिग्मा और अदर रिलेटेड इश्यूज। तो अगर हम इसको अर्ली टेस्ट करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, तो हम HIV के जो डिसीजेस हैं, इसको जो केसेस हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं और प्रॉपर टाइमली ट्रीटमेंट पीपल को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो कम हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट इज प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल पॉपुलेशन। तो जैसे कि अभी बताया था कि वल्नरेबल पॉपुलेशंस कौन सी होती है, जिसमें हमारे पेशेंट्स आते हैं जो कि रूरल पॉपुलेशन से होते हैं, मार्जिनलाइज ग्रुप से होते हैं। तो अगर हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, हाई रिस्क जो ग्रुप्स होते हैं जैसे कि विमेन आ गए, उसमें न्यूबॉर्न चिल्ड्रेन, ये सब उसमें इन्वॉल्व होते हैं, अगर उनको कंट्रोल करेंगे, उनको टाइमली ट्रीटमेंट और सर्विसेज एक्सेस करेंगे, तो इसका जो स्प्रेड है उसको डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द मॉनिटरिंग एंड सर्वाइलेंस। Tracking HIV trends help in planning effective strategies and allocating resources appropriately.
मॉनिटरिंग एंड सर्वाइलेंस में होता है कि जैसे कोई भी पेशेंट है जिसको HIV डायग्नोस हुआ है, तो HIV डायग्नोस होने के बाद वो या तो ट्रीटमेंट को प्रॉपर आगे बढ़ा नहीं पाते हैं ड्यू टू कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट जो ART टेक्निक्स होती हैं वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। और सेकेंड थिंग होती है सोशल स्टिग्मास, तो जिसके कारण प्रॉपर HIV के केसेस को और उसके ट्रेंड्स को कि वो कितना स्प्रेड हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, इसको हम रेगुलर एसेस नहीं कर पाते हैं। तो हमारा मेन मोटिव ये भी आता है कि हम इसको प्रॉपर सर्वाइलेंस में रखें, प्रॉपर मॉनिटरिंग करें पेशेंट्स की, जिससे हम इसके स्प्रेड को रिड्यूस कर सकते हैं। एक्सेस टू ट्रीटमेंट, public health ensures that antiretroviral therapy is available, affordable and accessible to all who need it। तो लास्ट जो इसका कंपोनेंट होता है पब्लिक हेल्थ का, इसमें आता है हमारा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। जो भी इंडिविजुअल्स जो हैं वो HIV से डायग्नोस हुए हैं, उनको ART थेरेपी या और जो सपोर्टिव टेक्निक से हम उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको वो प्रोवाइड करना जिनको इसकी नीड है। Now the point is the policies related to HIV and AIDS. So the first one is National AIDS Control Program NACP। इसके 5 फेजेस हमारे आए थे। ये फर्स्ट फेज इसका आया था 1992 में, सेकेंड वाज इन द 1999, NACP थर्ड 2007, NACP फेज 4 2012 एंड फिफ्थ इन 2021 जो कि हमारे करंट फेज है। तो जो हमारा NACP था, इस प्रोग्राम के बहुत सारे इनिशिएटिव्स थे जिसके रिलेटेड गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया था। तो फेज फर्स्ट था 1992। इसको स्टार्ट करने का मेन मोटिव था कि जो हमारे HIV के केसेस हैं इसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए और इंडिविजुअल्स को ART थेरेपी वगैरह प्रोवाइड करी जाए। लेकिन कुछ ऐसे सीन्स भी आए जिसके कारण गवर्नमेंट को 1999 में सेकेंड फेज स्टार्ट करना पड़ा। उसका मेन मोटिव ये था कि ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना जो था वो एक बेस्ट ऑप्शन नहीं था केसेस को प्रिवेंट करने के लिए, इसीलिए इसका सेकेंड फेज आया जिसमें हम केसेस को अर्ली डायग्नोस कर रहे थे, क्योंकि अर्ली डायग्नोस करने के बाद ही हम उसके स्प्रेड को प्रिवेंट कर सकते थे। उसके बाद जो थर्ड फेज था वो ट्रीटमेंट और इसकी सर्वाइलेंस के रिलेटेड आया था, जिसमें हम इसको प्रॉपर सर्वाइलेंस कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे केसेस का। एंड द फोर्थ फेज जो 2012 में आया था, इसका आगे का रीज़न कह सकते हैं बेसिकली ये था कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी उसको जो पीपल हैं उन तक प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि पॉलिसीज़ तो बन रही थी लेकिन पीपल तक प्रॉपरली एक्सेस नहीं हो पा रही थी, तो इसका मेन मोटिव था। एंड द लास्ट फेज जो करंट फेज है, इसका मेन मोटिव है जो एस्टिमेशंस हमने 2030 तक बनाए हैं गवर्नमेंट ने, वो हमारे प्रॉपरली अचीव हो पाए। एंड द नेक्स्ट वॉज HIV AIDS प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, जिसका स्टार्टिंग हुआ था 2017 में, which was a major law to protect the rights of people living with HIV and prevent discrimination. So as the rights convey that the rule was made to protect the rights of the people, क्योंकि ऐसा हमने अभी देखा कि हमें बताया गया जिससे कि स्टिग्मा होते हैं और डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए और इक्वल सर्विसेज सभी को प्रोवाइड करने के लिए हमारा जो सेकेंड एक्ट था वो आया था। नेक्स्ट इज द फ्री ART एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी प्रोग्राम, which was started in 2004. India started providing free ART medicines to people living with HIV. ऐसा होता है कि जो ART टेक्निक्स होती हैं या जो HIV का ट्रीटमेंट होता है वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है, हाईली कॉस्टली होता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने फ्री HIV की सर्विसेज, फ्री ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करी थी, जिससे जो मैक्सिमम पीपल हैं इंडिया में, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और पॉवर्टी देखा जाए तो हाई लाइन पे है, तो इसीलिए सबको इजीली सर्विसेज प्रोवाइड हो जाए, इस प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट हुआ था। Next was PPTCT policy, prevention of parent to parent child transmission 2002। तो देखा जाए तो HIV का एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है मदर टू चाइल्ड, तो ये प्रोग्राम बेसिकली इसी से रिलेटेड था, जिसको इंट्रोड्यूस करा था NACP के अंडर ही टू प्रिवेंट द HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू बेबी। अगर कोई भी मदर है उसे HIV पॉजिटिव है तो उसको कौन कौन से मेजर्स फॉलो करने हैं जिससे चाइल्ड में वो ट्रांसमिशन ना हो, ये सारी गाइडलाइंस हमारे इस प्रोग्राम के अंडर हमें प्रोवाइड करी गई थी। Next is the blood safety policy 2002, mandatory HIV screening of all donated blood to ensure safe transfusions। तो बेसिकली ये था कि उस टाइम पे बिफोर द लॉन्च ऑफ दिस प्रोग्राम इन 2002 ऐसा हो रहा था कि जो भी ब्लड डोनेट हो रहा था विच वॉज नॉट चेक्ड अर्ली कि वो HIV पॉजिटिव हो सकता है नहीं हो सकता है, तो उसको यूज़ करे थे और उसके कारण जो HIV का केसेस का ट्रांसमिशन था वो इंक्रीज हो गया था। तो इसीलिए गवर्नमेंट को ये प्रोग्राम लॉन्च करना पड़ा, जिससे कि जो भी ब्लड डोनेट होगा उसको पहले स्क्रीन किया जाएगा, अगर वो HIV पॉजिटिव पेशेंट का निकलता है तो उसको फिर फर्दर हम डोनेशन में यूज़ नहीं करेंगे और नहीं है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसका मेन मोटिव ये था। नेक्स्ट इज द नीडल एंड सिरिंज एक्सचेंज हार्म रिडक्शन पॉलिसी 2007, which was introduced under NACP थर्ड फॉर इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स। तो इसमें ये था कि नीडल एंड सिरिंज एक्सचेंज जो कि ड्रग यूजर्स करते हैं एट द टाइम ऑफ द ड्रग एडिक्शन, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए और HIV के ट्रांसमिशन को डिक्रीज करने के लिए।
Workplace HIV/AIDS Policy 2009, which promotes non-discrimination and awareness in employment sectors. तो इस प्रोग्राम का मेन मोटिव था कि जो भी सोशल स्टिग्मा या डिस्क्रिमिनेशन जो HIV के पेशेंट्स फेस करते हैं ड्यूरिंग द वर्क शेड्यूल्स, उनके ऑक्यूपेशनल सेक्टर्स में जो उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, उनको इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए। फिर आते हैं हमारे कॉमन पर्पसेस ऑफ ऑल दीज पॉलिसीज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ HIV इन द कम्युनिटी। जैसे कि NACB प्रोग्राम था जिसका मेन मोटिव था कि HIV का जो स्प्रेड है इसको हम रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल लिविंग विद HIV एंड AIDS, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन होता है और सोसाइटी में हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे स्टिग्मास है रिलेटेड टू HIV एंड AIDS, तो इसको रिड्यूस करने के लिए भी हमारे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई थी। थर्ड वन इज टू इंश्योर फ्री एंड एक्सेसिबल टेस्टिंग, ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग। फ्री एक्सेसिबल टेस्टिंग प्रोवाइड करने के लिए, इसकी स्क्रीनिंग सर्विसेज और अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी हमारे प्रोग्राम्स बनाए गए थे। फोर्थ वन इज टू रिड्यूस स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी, जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम्स थे रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा, तो इसके लिए प्रोग्राम्स थे। द नेक्स्ट इज टू प्रमोट सेफ प्रैक्टिसेस, सेफ सेक्स, सेफ ब्लड एंड सेफ नीडल्स। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड प्रोग्राम है और नीडल्स एंड सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम है, तो ऐसे प्रोग्राम्स बनाए थे गवर्नमेंट ने HIV के ट्रांसमिशन को रिड्यूस करने के लिए। द नेक्स्ट वन इज टू प्रोटेक्ट प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यूबॉर्न्स फ्रॉम HIV ट्रांसमिशन, जो कि हमारा प्रोग्राम था HIV ट्रांसमिशन को स्प्रेड को डिक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट इज द कंक्लूजन। सो कंक्लूजन सेज इट ऑल कि जो हमारा HIV ट्रांसमिशन है इसको रिड्यूस करने के लिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमारी पब्लिक हेल्थ को बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो मेजर्स यूज़ होते हैं, और गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो इसको इंक्रीज़ करती हैं, और इसके एस्टिमेशंस और जो स्टैटिस्टिक्स हैं इसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसकी हेल्प से हम HIV को रिड्यूस कर सकते हैं, इसके स्प्रेड को हम डिक्रीज़ कर सकते हैं।